Okay. Now we will do heat pump. So let's see the cycle first. Just the reverse. This is your A to B, which is your adiabatic pressure versus volume indicator diagram. This is isothermal expansion. This is again adiabatic, uh, and this is your isothermal. So just the reverse order. This is adiabatic expansion. वो इस डायरेक्शन में थी कार्नेट की, ये इस डायरेक्शन में रिवर्स ऑर्डर में. This is adiabatic expansion. Then B to C is isothermal expansion. And then again you have adiabatic compression. Is from C to D. And then from D to A, it is isothermal compression. So a refrigerator works along the reverse direction of a heat engine. Okay. So all the operations of a Carnot engine, which is a heat engine, are done in a reverse order, and that's all. Indicator diagram is working substance वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर. अच्छा, now how does it? What are the components? What is the conceptual picture? This is your sink. This is your sink. This is the sink, and it basically contents of refrigerator. At temperature T2, and this is your heat pump. Okay, so this is your heat pump, just a block level diagram, and you do work on it, on the working substance. This is your work done, and the heat, using this work, you are able to extract heat from the sink, which is Q2, and this is your source, which is atmosphere now, reversed, capable of taking any amount of heat, and this is kept at temperature T1. तो एटमॉस्फेयर में ही फ्रिज के पीछे ही जो होता है हीट रिलीज करी जाती है. सो दैट इज योर Q1. So this is the heat, this is a work you did, this is a heat extracted. So the work which is done is Q1 minus Q2. And the working substance here, which is in a fridge, is, nowadays there are many substances, but the one I remember is freon. आजकल तो बहुत सारी gases आ गई हैं, but freon gas used to be very popular working substance in a fridge. या liquid ammonia. पियोन की नियॉन. Freon. फ्री ऑन. Free. हाँ. Liquid ammonia भी use होता था, but okay, so this is your sink. This is at lower temperature, fridge के अंदर, और this is your atmosphere. Okay, so you're doing work on the, that पीछे जो compressor होता है actually, that is doing the work and taking out heat from the
sink, which is the contents of the refrigerator, apple या जो भी milk है, and then throwing out that. So Q1 actually is the work you do and the heat you extract. Both. This is the heat which is thrown out to the atmosphere. This is the heat extracted from the material inside the fridge, and this is the electricity expenditure. जो सिंक बेसिक जो ये जो वर्क डन हो रहा है करता कौन है? कंप्रेसर, राइट? उसका ही काम होता है ये. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड टू हॉट एटमॉस्फेयर. दैट इज अ वे इट वर्क्स. कोल्ड से एटमॉस्फेयर इज सपोज टू बी एट हायर टेम्परेचर. तो हाउ डू यू थ्रो आउट हीट from a lower temperature to a higher temperature? You have to use a heat pump. हीट को पंप करने वाला, हीट को बाहर फेंकने वाला. वाटर पंप थ्रोज वाटर, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर थ्रोज हीट. बट द फंक्शनिंग ऑफ or so to say the efficiency measurement of a refrigerator, how good it is basically, you're expanding this much work, and by expanding this much work, how much heat are you successfully able to एक्सट्रैक्ट. सो ये बहुत फोकस में है कि मैंने डब्ल्यू काम करा और पर जूल से मैंने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी. दैट इज माय मार्क ऑफ सक्सेस. तो इसमें एफिशिएंसी वर्ड नहीं यूज होता. what is the word used here instead is, we say it's called COP, or we call it coefficient of performance. So if you want to say my fridge is performing well, what you're saying is for every joule of work I do, presented by beta, for every joule of work I do, I am able to extract more heat. So that's a good fridge. I do W, and I'm able to extract Q2. So W work से Q2 और 1 जूल से Q2 by W heat extract होती है. That is my coefficient of performance. So we don't use efficiency word here. Efficiency is restricted to heat engines only, and therefore this is equal to Q2 upon Q1 minus Q2. So if you have a perfect refrigerator in the world, right? Perfect refrigerator, like a 100% efficient engine, right? And we talk about then it should do no work and should be able to extract complete heat from the system. So Q2 will be extracted is equal to Q1. So without doing any work, you're able to extract Q2 work, which gets thrown out to the atmosphere as Q1. And therefore, your coefficient of performance ideally should become infinite. That means you use no work and still are able to extract Q2 heat, which gets thrown out. And if you see this equation, W is 0. So Q1 is equal to Q2. Q1 is equal to W plus Q2. So no work, therefore Q1 is equal to Q2. All the heat extracted is thrown out without expending any work. So impossible, but COP equal to infinity का concept पता होना चाहिए, that you are doing no work. Okay. In the case of Carnot engine, 100% efficiency अगर है, right? इसका मतलब क्या होता है 100% efficiency का? Efficiency is equal to heat. इंजन की अगर बात करें तो जो भी आपने फ्यूल दिया, वर्किंग सब्सटेंस दिया, राइट, ऑल ऑफ दैट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. सो देयर शुड बी नो throwing out of Q2. No rejection should be there, right? So efficiency is equal to 1 there, because the Q1 is a heat which is supplied by the source. All of that gets converted into work done. So W upon Q1 is equal to W upon W is equal to 1. Q2 exhaust kuch bhi nahi hua, right? So there the concept of ideal Carnot engine is eta is equal to 1, whereas in the case of a refrigerator, an ideal benchmark measurement for noting the performance of a refrigerator is a beta, coefficient of performance. So infinite is an ideal situation, never achieved. Okay. बिजली का बिल नहीं आएगा, चीजें अपने आप ठंडी हो जाएंगी. So we also call it Carnot
refrigerator. Okay, a Carnot refrigerator. In a Carnot refrigerator, we are not going into derivations and all that. Q1 by Q2 is equal to T1 by T2. जैसे कि वहां था, same to same, right? And to you can write your other equations also, which is beta, जो हमने लिखी है यहाँ पे, as equal to Q2 upon Q1. uh, Q2 को क्या लिख सकते हैं बेसिकली? सॉरी, बीटा को हम लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेशन अभी हमें करनी नहीं है, तो यू मे हैव टू मेमोराइज some of the equations, but they will become common sense once you start practicing, and you will see a pattern emerging कि क्यों हो रहा है ये. So one is this, ये हमने कल भी यूज करा था, something very similar for a Carnot engine. So this is a Carnot refrigerator or a heat pump or a refrigerator. And so the refrigerator that follows Carnot cycle is the Carnot refrigerator. Between two temperatures, it offers the maximum possible coefficient of performance. Okay. You can have other refrigerators that may not follow isothermal, adiabatic, isothermal, adiabatic. If you don't follow that, you will not be able to get a Carnot refrigerator of good efficiency. कार्नेट ने बोला था 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक यूज करोगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी. कल वो जेई का क्वेश्चन भी था, राइट, बिटवीन टू टेम्परेचर्स बी सी डी, जिसका आंसर था, इफ यू रिमेंबर. देन Q1 minus Q2 upon Q2, which is also written as subtract 1 from both the sides, या -1 कर दिया, -1 इसमें कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू T1 minus T2 by T2. वन और उल्टा लिख दोगे अगर, तो दिस विल बिकम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. द वर्क डन, per unit work done for extracting this much heat, can also be written as T2 upon T1 minus T2. Very similar to the efficiency formula of 1 minus T2 by T1, but यहाँ ये T2 नीचे चला जाता है basically, right? So this is your efficiency being beta A basically, right? W जूल से Q2 हीट, 1 जूल से Q2 बाय हीट एक्सट्रैक्ट हुई, उसको टेम्परेचर की टर्म्स में ले आए, सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन efficiency. So 1, 2, this is basically -1 on both the sides. You get this, right? And then you rewrite this as revert. This is basically the work done. इसको उल्टा लिख दिया, इन्वर्ट कर दिया, इसको उल्टा लिख दिया, तो Q2 ऊपर चला गया है यही इक्वेशन. तो दिस पार्ट इज योर वर्क डन to extract the heat. So coefficient of beta, therefore, is also written in terms of sink and source, T2 upon T1 minus T2. Like eta was written in terms of temperature. Okay. So let's try and establish a relationship between coefficient of performance and efficiency of a refrigerator. तो वैसे तो refrigerator should not have any efficiency, by the way. But theoretically, if it has an efficiency, how will they be linked? So we are linking the coefficient of performance of a refrigerator, which is the only performance measurement it should have. It has nothing to do with efficiency because it really doesn't spend any heat and converts it into work done, mechanical work done. So होना तो नहीं चाहिए, but theoretically, if you have to link the efficiency of refrigerator and the coefficient of performance of a refrigerator, right? So दोनों का ही एक बार कैलकुलेशन अगर देखें तो कैसे आता है. बीटा वी हैव ऑलरेडी established is equal to the heat thrown per unit joule, and we can write it as Q2 by Q1 upon 1 minus Q2 by Q1. इसको मैंने लिख दिया है Q2 Q1 minus Q2 डिवाइडिंग बाय Q1, ये इस तरह से लिख दिया. और एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है which is coming from the engine is 1 minus Q2 by Q1, जो जनरल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमेशा, राइट? वही Q2 Q1 हमने बिल्कुल चेप दिए वैसे के वैसे, राइट? तो Q2 by Q1 will come out to be 1 minus eta from this. Okay.
and equation 1 and 2. So take this equation, take this equation. We know Q2 by Q1 is 1 minus eta. We start substituting here. 1 minus eta, ये 1 minus eta बन गया upon 1 minus eta is equal to 1 minus eta upon eta. So if you have to convert theoretically a coefficient of performance of a refrigerator into efficiency of the refrigerator, which is meaningless. A refrigerator actually has nothing called as efficiency. It is not doing any mechanical work. But for the sake of it, if you just try to establish a relationship between these two, then this is to be used. Beta is equal to 1 minus. ऐसे पूछ लेते हैं, मीनिंगलेस है मतलब. What is a physical significance? जब आप कोई हीट सप्लाई करके वर्क डन निकाल ही नहीं पा रहे, तो आप ईटा ऑफ अ रेफ्रिजरेटर से क्या प्रूव कर रहे हैं? कुछ भी नहीं प्रूव कर रहे एक्चुअली. Nothing is being proven. Any doubts so far in your mind pertaining to the terminology? You don't need to get into details of this, but you should know that it's a Carnot engine in a reverse manner. Concept पता होना चाहिए कि that I will do work, extract heat from somewhere, make it cold and throw out that heat. Sink source remain the same. The direction of the heat is reversed. Instead of supplying heat from the source, now you throw the heat to the source, which is capable of absorbing infinite amount of heat. Like our atmosphere is able to do that. Refrigerator से heat निकलती है पिछली साइड पे, हमारे एटमॉस्फेयर में फेंकता है वो बाहर. Who does that? The compressor, which is our heat engine or the heat pump. Any questions that come in your mind? नहीं. You will get comfortable with this once you start using it. Okay, these terminologies, T2, T1, coefficient of performance is T2 by T1 minus T2. T2 is still the lower of the temperature because it is a sink. Only thing is, it's not 1 minus T2 by T1. It is T2 upon T1 minus T2. That is the only difference. और कोई फर्क नहीं है. So let's say you have a Carnot engine. Sorry, you have you are given a Carnot engine to start with. Okay, so there was a Carnot engine, and somebody said you run this Carnot engine in a reverse direction. Please run it in a reverse direction. Oh, so you said, okay, so you want me to run a Carnot engine in a reverse direction? You're asking me to convert this into a Carnot refrigerator, actually. Okay, like a Carnot refrigerator. And what is the data which is available to you? It says the inside temperature is equal to minus 10 degrees. And the outside temperature, which is again T1, which is higher, is 30 degrees. So either word is inside and outside and all that. Question is, what is beta equal to? The coefficient of performance. You said, okay, T2 upon T1 minus T2. Inside means, so T2 is minus 10 plus 273 upon 30 plus 273 minus T2, which is minus 10 plus 273 is equal to 263. तो ये तो कट ही जाएगा. And this becomes 40 is equal to 5.9. So value is 5.9, the coefficient of performance. So for every 1 joule of work, you are capable of throwing out 5.9 joules of heat. Coefficient of performance. Highly efficient, high amount of COP, not the conventional one. Okay, so let's say if we mix up calorimetry, which is essentially a refrigerator, आइस वाला जो आइस तो होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, राइट? तो वो गर्म ठंडी कैसे हो रही है? क्योंकि पानी से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल के वो 80 कैलोरीज वाली जो होती है आप फेंक रहे हो बाहर और काम कर रहा है कंप्रेसर. So let's say you have a cold storage. Okay, so there is a cold storage.
Okay, so cold storage is available to you. The ice is melting in it at the rate of 2 kilograms per hour. So here the fuel is not being supplied. Calorific value of fuel is not available, but there is a cold storage where ice is continuously melting. And the external temperature available is 20 degrees centigrade in the outside the cold storage. Now you have to find the you have to use a motor. सर की आवाज नहीं आ रही. Okay. And सर की आवाज कट रही है. हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, बीच में बहुत कट रही है. फिर से नेट का प्रॉब्लम आ गया था. एनीवे, so this you need to find the power of the motor, and the aim is you want to prevent melting of ice. Okay. Melting of ice, right? And you know the latent heat of fusion of ice is equal to 80 calories per gram. You want to prevent melting of ice. Find the power. That means you have to do work to extract heat, and latent heat is this much. और अब मेल्टिंग आपकी स्पीड से हो रही है, 2 किलो पर आवर की स्पीड से हो रही है. इसका मतलब आपको हीट कितनी एक्सट्रैक्ट करनी है 1 घंटे के अंदर? 2000 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 80. दिस इज द मास. हर ग्राम से इतनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी आपको 0 डिग्री पे लाने के लिए. मेल्ट हो रही है ना, 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट हो रही है. हाँ जी. 0 डिग्री आइस बनाने के लिए उससे 2000 ग्राम से, और ये आपको करना है. मैं इसको ना उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ एक्चुअली, ये 4.2 जूल्स में. तो ये जूल्स है 60 × 60, राइट? इफ यू टेक आउट दिस मच हीट फ्रॉम 2000 ग्राम्स इन दिस मच टाइम, ये बेसिकली जूल पर सेकेंड ही तो है. हाँ जी. So ms theta upon time. This is the total heat which the motor should be able to extract from the ice. What do you think? Yes. नहीं? हाँ जी. Okay. Okay. If you notice, I think why this is the heat which is to be thrown out of the ice.
So we have used calorimetry so far, right? But after all, what is happening? You have an external temperature also of 20 degree, right? And your refrigerator needs to do some work. The heat that you need to throw out is this much. That you have come to know. I have to throw this much heat. वो पता लगा लिया. बट मोटर की जो रेटिंग है वो तो W होती है ना. Motor is not capable of saying I will do W amount of. Motor is going to extract, sorry, Q2 from here and throw out Q1. तो मोटर तो ये एक्सट्रैक्ट कर रही है ना. This is your motor. हाँ जी. And if you notice, the ice is T2 is equal to 273 Kelvin and the external temperature is 293 Kelvin, which means the coefficient of performance of the refrigerator is how much? अभी हमने ऊपर क्या फॉर्मूला देखा है? T2 upon T1 minus T2. तो कितना आ जाएगा ये? एक मिनट. T2 is 0 degree, right? 0 plus 273. नेगेटिव में क्यों आ रहा है यार? T2 minus, sorry, T1 minus T1 minus. ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करना जरा. 30, कितना आ रहा था? 40. 263 डिवाइडेड बाय 40 अगर करें तो 46 गलत है ना. ये T1 अपॉन है. दिस इज बेसिकली 30 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 40. 300 एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यही फॉर्मूला है. नहीं, T2 ही होता है यार. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज T2. एक मिनट, कैन वी गो बैक टू द डायग्राम ऑफ सिंक का टेम्परेचर T2 है. T2 ऊपर लिखेंगे. T2 तो पॉजिटिव ही होगा. हाँ, तो डिवीजन क्या है? ओह यार, उल्टा लिखा हुआ है फॉर्मूला. ऊपर सिर्फ T2 होता है ना. हम्म. 273 अपॉन 293 माइनस, मैंने ये लिखा हुआ था फॉर्मूला. T2 माइनस T1 अपॉन T2. ये नहीं होता फॉर्मूला. T2 अपॉन T1 माइनस T2. 273 इज इक्वल टू 273 अपॉन 20. So this is your coefficient of performance of your रेफ्रिजरेटर. जो भी आपकी कोल्ड स्टोरेज में रेफ्रिजरेटर है, वो क्या कर रहा है? वो Q2 हीट फेंक रहा है, जो आपने पता लगा ली. एंड नाउ बीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q2 by W. For every W joules of work, you will throw out this much. Now you beta you have found out from your temperature, 273 by 20. Q is already known to you from calorimetry, that you need to throw out how much heat out of it. So this is 2000 into 80 into 4.2 upon 60 into 60 is the Q2 divided by W. So if you find W, that is the rating of the motor. Made sense? समझ आया? Yes. हीट फेंकना अलग होता है, काम किसी और से करवाना है आपने. जो कैलोरीमेट्री से आपने हीट पता लगा ली, फेंक कितने रहे हो, आपने वर्क डन ही निकाल लिया मोटर का. तो वो आपने टेम्परेचर से ले आया आप, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर का यूज करना था हमें कुछ ना कुछ. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू अ कंपैरिजन ऑफ two refrigerators so that this concept also
you have a one more perspective. So there is a refrigerator A. There is a, so let's say this is your refrigerator A, and there is a refrigerator B. And we know how to measure their performance. It has to be, this works between minus 10 degrees and 27 degrees. इस पे काम करता है ये. Okay. The other refrigerator works between minus 20 and 17 degrees. And now they're assigned a task. Okay. That from the freezer, both of them have to throw out through 2000 joules. This is a task assigned to them. कि भैया तुम 2000 जूल जो है फ्रीजर से बाहर फेंको. क्वेश्चन इज विच इज अ बेटर रेफ्रिजरेटर. ट्राई करो. You know T1, T2, coefficient of performance. If you know coefficient of performance for the same amount of work, जिसका coefficient of performance ज्यादा होगा वो better refrigerator होगा. Write out. Write beta. हम्म, ये 27 और 17 क्या दे रखे हैं? Degrees. The refrigerator A works between this source and sink. सब बीटा जो होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2 होता है ना. हाँ जी. बीटा इज T2 अपॉन T1 माइनस T2 ना. Yes. तो सर बीटा मेरा नेगेटिव में क्यों आ रहा है? T1 तो बड़ा होता है हमेशा क्योंकि केल्विन में T1. नहीं कन्वर्ट करा हुआ. हाँ. 273 प्लस 27.
तो जो T1 वो -10 डिग्री है ना, जिस पे ऑपरेट हम्म करे रेफ्रिजरेटर। वो हायर है या लोअर है? लोअर है। T2 है वो। और T2। सिंक हो गया ना वो। तो सबसे बढ़िया तो सर रेफ्रिजरेटर ए है। ना या COP। एक का 263 है, दूसरे का 253।
ओके, बहुत ही एक पुराना क्वेश्चन है जो स्कूल के पेपर्स में रिपीटेडली आता है एक्चुअली। वेरी स्कूल लेवल बट गुड क्वेश्चन। जस्ट दिस। हमारे घर में जो एसी होता है दैट ऑल्सो इज अ हीट पंप। वो भी अच्छा, ठंडा कर देता है। ठंडा करता है। हीट को रिजेक्ट करता है बाहर। पीछे रेडिएटर होता है, अंदर कंप्रेसर होता है। रेडिएटर से हीट फेंक देता है बाहर, रेफ्रिज और कंप्रेसर से काम करवाता है। ओके। फ्रिज में भी यही होता है, पीछे वो रेडिएटर की वो होती है, कॉइल्स होती हैं जहाँ से हीट बाहर जाती है। और ऐसे ही जो एयर फिल्टर वाला वो होता है, ऑयल फिल्टर वाला जो होता है, हीटर होता है हमारे घरों में। हाँ। वो रेडिएटर का काम ही करती है ना, उसकी जो फिन्स होती हैं, जो पहिए पे खड़ा होता है ऑयल क्या फिल्टर है? वाला, पीछे रेडिएटर होता है फ्रिज और एसी के। वो हीट बाहर फेंकता है। जो चीज ठंडी करती है वो हीट फेंकती है, हीट पंप है। इफ यू कीप योर रेफ्रिजरेटर ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, हम्म, राइट, व्हाट हैपेंस इज द क्वेश्चन। ठंडा कर विल देगा इट मेक कमरे को। आ रेफ्रिजरेटर ठंडा कर देगा? गर्म कर देगा। क्यों? यार हीट रिजेक्ट कर रहा है ना वैसे तो वो। नहीं, वैसे वो ठंडा तो मतलब। नहीं नहीं नहीं, अब क्या होगा कि जो अंदर सब्सटेंस है एप्पल, हम्म। इट विल गेट एक्सपोज टू व्हाट, एट एटमॉस्फेयर। एटमोसफियर। तो आपका जो कंप्रेसर है उसको और जान लगानी पड़ेगी हम्म। उसको ठंडा रखने के लिए। तो डब्ल्यू विल गो अप ड्रास्टिकली। तो हीट ओके। रिजेक्टेड विल गो अप क्योंकि डब्ल्यू बढ़ गया ना। और आपका हाँ। जो T2 है, T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2 में व्हाट हैपेंस टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सी इफ T2 गोज अप, क्योंकि T2 अब नाउ यू आर एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट। मान लो बाहर टेम्परेचर गर्मी है, 35 डिग्री है, फ्रिज खुला रह गया तो अंदर 30 डिग्री हो गया। ठीक है। तो हम्म। व्हाट हैपेंस टू योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है आपका फिर जो आपका ठंडे वाला एरिया है वो 30 + 273 पे है। और ये T1 माइनस T2 है, मतलब 30 + 273 अपॉन 35 + 273 माइनस 30 + 273 इज इक्वल टू 30 + 273 अपॉन 5। यस। सो दिस विल बिकम हाउ मच, 300 कुछ हो जाएगा, 303 अपॉन 5, 60। Compare this to a situation where your this
एप्पल इज एट 5 डिग्री ना। बाहर का तो आप बदल नहीं सकते हो। दिस इज योर T2 हम्म। and this is your T2. This is your T1. 3 9s are roughly 3 3s are. 3 3 से 9। सॉरी, ये क्या आ गया? 278 डिवाइडेड बाय 30 आ गया ना, ये तो 9 पॉइंट कुछ हो जाएगा। हाँ, तो दिस शोज ना दैट you are throwing out more heat per unit work. So your room will go hotter. बाहर ज्यादा हीट आएगी ना। In these temperatures, this is 60, which means for 1 joule of work done, you will throw out more heat out. तो आपका कमरा गर्म हो जाएगा ना फिर। बट इस केस के अंदर you are just throwing in 9 joules, so your temperature will remain low. कमरा मतलब उतना गर्म नहीं हो पाएगा because your rejection is less. So if you keep your fridge open for long time, you will find the temperature of the surrounding, which is your room, will go up. ये भी आ गया। Now the language will be more. अब बहुत एक्सप्लिसिटली पूछ लिया इसने वही बात को। In an effort to cool a kitchen during summer. वो सेम ही है। हम्म। किचन गर्म हो जाएगी अगर फ्रिज खुला छोड़ दिया तो। हाँ, गर्म एप्पल से ज्यादा हीट आपको खींच के बाहर फेंकनी पड़ेगी। मतलब कितना तापमान बढ़ जाएगा किचन, वो आउटसाइड टेम्परेचर। वो तो देखो, आपने जो हीट रिजेक्ट करी एयर की, आप एस पता लगा लो, टोटल मास ऑफ द एयर पता लगा लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर मालूम है आपको पूरे किचन में अगर, तो हम्म। क्यू जो सप्लाई हुई है दैट विल बी इक्वल टू एम एस थीटा। ठीक है। कैलोरीमेट्री, ओके। ट्रांसफर ऑफ हीट, और क्या करोगे। ठीक है। हाँ जी, यही क्वेश्चन है ना एक्चुअली। हाउ मच हीट इज बीइंग डिलीवर्ड टू द रूम, सो यू टू फाइंड Q2, सॉरी, यू टू फाइंड Q1 here, right?
डिलीवर टू द रूम तो Q1 हो जाएगा ना, W+Q। एटमॉस्फेयर पे कितनी जा रही है? यू टू फाइंड Q1। नहीं समझ में आ रहा? नहीं नहीं। आई थिंक T1 इज 300। इतना सा डिफरेंस है इनके बीच में? 27 नहीं है इनके बीच में डिफरेंस, 23। 300 माइनस 277। यस, एक मिनट।
Okay, so the work done is 1 1 joule, जूल 1 जूल। right? You have to find Q1. हाँ, हेलो। Q2 अपॉन W। And Q2 is Q1 is equal to Q2 plus W. Either you can add 1 to both the sides. Add 1 to both the sides. +1 +1. तो Q2 plus W आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? नहीं बस थोड़ा। 230, 253, 276, 12, approximately 12. 12 ही लिख लो उसको। और 12 जूल। Yes. और Q1 आ जाएगा It जूल। actually has no unit. Dimensionless है यार. What do you mean Q2 12 है ये। joules? Q2। अच्छा बीटा लग रहा है मुझे तो ये। अरे बीटा भी वही है और Q2 भी वही है। अच्छा, per 1 joule. Okay, now you have to find that. Okay. 12 plus 1. ठीक है। ऐसा 13 जूल। ठीक है। राइट आंसर। ये लास्ट टॉपिक है ना हमारा, फ्रिज। यस। जो फ्रिज का आविष्कार हुआ तो वो भी इसी बेसिस पे हुआ था क्या? हम्म। अच्छा। अब जी हीट रिजेक्ट करानी है। उसके लिए किसी ने दिमाग लगाया कि यार रेडिएटर बना लेते हैं। कार में भी होता है रेडिएटर बाय द वे, हीट फेंकने के लिए बाहर। तो अपने दिमाग लगाया, चलो काम करना है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, साइंस बोलती है वर्क डन। चलो जी मोटर बना लेते हैं, कंप्रेसर बना लेते हैं। वो सब मोटर इंजीनियर्स तो ने करा। उसने बनाई थी ना, माइकल फराडे ने, शायद। आई थिंक। मोटर नहीं बनाई थी उसने। नहीं, एसी डीसी मोटर। मोटर नहीं बनाई थी उसने यार। उसने सिर्फ क्या बनाई एक्सपेरिमेंट थी? करा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, कि इफ द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज कट बाय certain rate, you will get voltage. ये कॉन्सेप्ट यूज करके किसी इंजीनियर ने बड़ी सारी तारें ली और तो उसको जो मैग्नेटिक प्रिंसिपल फील्ड था के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर का, माइकल फराडे ने ही बनाया है। प्रिंसिपल बनाया है ना, मोटर नहीं बनाई भाई। मोटर नहीं ने प्रिंसिपल बनाया है। हाँ वही कह रहा हूँ मैं। साइंस उसकी है, काम इंजीनियर ने करा है किसी। अच्छा। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड फेमस साइंटिस्ट माइकल फराडे। ये जो बिजली दे गया। सर इसने सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी काफी कंट्रीब्यूशन दिए हाँ जी। हैं। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम, हाँ उसके अंदर उसका एक हो रहा है योगदान, हाँ। कह लो। पैराडेज का एक सेल भी होता है, अच्छा। लिक्लांचे होता है ना जैसे।
यो 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 यो। आ जाओ भाई। जेई मेंस अगस्त इवनिंग शिफ्ट। कहाँ पर है? फेल टू लोड हो गया है एक बार। पेज नंबर 3। दिस इज -10 ना? यस।
सर ऑप्शन ए 263 जूल पर सेकेंड। ओके, चेक करता हूँ मैं, पता नहीं। पूरी जेई में मुझे एक क्वेश्चन मिला बस, ये प्रिंट नहीं हुए होंगे, हो सकता है ना प्रिंट। अच्छा, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी, क्या क्वेश्चन है, देखो जरा। रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स 35 watts पावर टू ऑपरेट बिटवीन दिस एंड दिस। ये कंजम्पशन तो मोटर की हुई ना, फिर कंप्रेसर की। वर्क डन पर सेकंड हो गया ये, हम्म। बिजली का खर्चा, ठीक है। -10 to 10, तो वर्क डन पर सेकंड, हाँ ठीक है, 35 जूल्स। बीटा इज इक्वल टू 263 Q2/W। सो Q2 भी निकाल लिया, निकालना क्या था? Heat loss. If there is no loss of energy, how much average heat per second does it transfer? एक्सट्रैक्ट या ट्रांसफर? एक्सट्रैक्ट ही हो गया ना। हाँ, ट्रांसफर। अगर हमें Q1 निकालना पड़ जाए तो क्या आएगा आंसर? वन निकालना पड़ जाए तो ऐड हमारा कर टू देंगे ना। नाइनटी एट आ जाएगा। वो तो नहीं पूछा इसने कहीं, ट्रांसफर्ड, क्योंकि मतलब वन भी निकाल देता हूँ, 298 केल्विन, टू मुझे नाइनटी एट लगता है जूल है। ट्रांसफर जो है ना, हाउ मच इट ट्रांसफर्स टू द एटमॉस्फेयर है, हम्म। एक्सट्रैक्ट नहीं है। एक मिनट में चेक करता हूँ, लैंग्वेज से पता चल जाएगा। ये मैंने बोला था 2020। पता नहीं। पता नहीं कौन सा था। 2023 का लग रहा है मेरे को तो। नहीं नहीं, 23 का नहीं है ये। इट इज नॉट 2023। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट यू फाउंड इज नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर का क्या मतलब है? एक्सट्रैक्टेड है जो तुमने निकाली, 298 अपीयर्स टू बी। दोनों ही निकाली मैंने, Q1 भी निकाली, Q2 भी निकाली। उसने क्या पूछा वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ। व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन? डिड यू टेक इट एज ट्रांसफर और यू डिड टेक इट एज एक्सट्रैक्ट? मैंने पहले तो एक्सट्रैक्ट ही लिया है। हाँ, मुझे लगता है वो एक्सट्रैक्ट वर्ड जो है कुछ उसी के अंदर राज है कोई। अच्छा, एक तो ये गुम ही हो जाएगा हमेशा क्वेश्चन। एक मिनट जरा सर्च करके देखना है यार, क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन बताना जरा क्या है। रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स एन एवरेज ऑफ 35 watts, इसी से आ जाएगा कहीं ना कहीं। मुझे लगता है ट्रांसफर्स टू एटमॉस्फेयर होना चाहिए, नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक। फिर भी लैंग्वेज में सटल थोड़ा सा अंतर है। हाँ, 263। टू एक्सट्रैक्ट नाइनटी ही एट था नहीं है, मेरा, सही था। एक्सट्रैक्ट ही है। हाँ हाँ। ओके, तो वर्ड लिखा है ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर टू। मैं भी तो बोल सकता हूँ ट्रांसफर्ड का मतलब एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर, तो करो 298। 63 सही है। सब जगह 63 है। हाँ हाँ, तुमने दो सौ नकल मारी एक तिरसठ ही। दूसरे की।
अब गधों ने एक दूसरे की नकल मारी हुई जाओ बाईजूस का देखते हैं। हाँ बाईजूस का भी वही है। है। किसी गधे ने ये ना है सोचे समझे। 63। डाउट नट। इनका और भी नलायक, 263। दो। महानलायक, कुछ नहीं आता। आंसर इधर उधर से टोप टाप के कोई बोल, दाढ़ी वाला बोलने आ जाता है कुछ। दाढ़ी वाला। कभी कोई बच्चा आता है, कभी कोई बच्चा आता है, उसे कुछ नहीं पता होता वो बोल क्या रहा है। मतलब ओके ये योरसेल्फ सी ना, ट्रांसफर्ड का क्या मतलब हो सर सकता रुक है। जाओ। गॉड से पूछते हैं जरा एक बार। वो कौन है? वो है हमारे चैट जीपीटी। अच्छा, वहां से आता है। अरे वो एक मिनट जरा। A refrigerator consumes 35 watts of power to operate between। ऐसे ही घुमा दिया मैंने कुछ। कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे ट्रांसफर को बोलते हैं, तो मैं तो यार एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर मान लूंगा। मेरे मतलब समझ नहीं आएगा कि मैं हीट एक्सट्रैक्टेड ही क्यों निकाल लूं, मैं वो निकाल लूंगा। सर इसका भी वही है। 263 चैट जीपीटी का भी। वो कहाँ से लेके आता है? हाँ जी। कौन डेटाबेस है। करता है? अच्छा, वो तो जो नेट पे दिया होगा वो उठाई वही उठा के लाएगा ना, अपना दिमाग थोड़ा ना लगा देगा। एनीवे, इज डेटाबेस है। क्या डेटाबेस है? वो चैट जीपीटी एक पूरा। वह कोई डेटाबेस नहीं है। क्या है वो? uses a database, learns from it, and develops its own intelligence. अच्छा। That is what it is. Okay, it is not a database. It uses information from multiple sources and then applies its own mind also. It is a learning software. It learns. अच्छा। जी, डेटाबेस है। कहाँ से आ गया डेटाबेस? यूज करता है तो इसलिए बहुत सारी इनके ऊपर केस भी हो रखे हैं कोर्ट में कि तुमने हमारे से सीख के, तो हम हमारे पास कौन आएगा अगर सभी तुमसे सीखेंगे? तुमने सीखा कहाँ से है? हमसे। अब लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं और हमें नहीं यूज कर रहे हैं। तुमने सीखा किससे? हमारे से। हमारे तुम्हारा जो आया था वो स्टडी करने हमारे यहाँ पे आया था, उनको पता चल जाता है जिन जिन के पास स्टडी करने आता है वो। उनकी वेबसाइट पे स्टडी करने आया होगा चैट जीपीटी, उन्होंने पकड़ लिया, चैट जीपीटी वालों के ऊपर केस कर दिया उन्होंने। डेटाबेस का मालिक तो उससे सीखा और उसी को बीट करा फिर। यही ट्रिक हो गई। अच्छा। मेरी बिल्ली मेरे से मैं हूँ। हाँ, ये हो गया कि बेटा हमसे सीखा और हम पे हमें हमें उड़ा दिया। ये काफी मतलब कंटेंशियस इशू है कि ये चैट जीपीटी विदाउट knowledge available is zero. It cannot do anything. Therefore, it goes and studies others. And then it makes a point of view जो बेस्ट होता है।
मतलब सब 2000 जगह से पढ़ने की ताकत है, तुम कहाँ से पढ़ोगे भी 2000 जगह से? एक किताब है तुम्हारे पास। ठीक है। ओके, इट इज व्हाट इट इज। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर सही में बहुत इजी चैप्टर था ये। एक्चुअली वो आगे भी होता है थोड़ा सा, जिसमें इंटीग्रेशन और थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट हाँ, अच्छा, थोड़ा सा और भी है। मतलब सर थर्मल प्रॉपर्टी से तो काफी इजी है। हाँ मतलब आता है तो यार बहुत ही, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस विच दे गिव इज फ्रॉम दिस चैप्टर। हैं? ऐसा है? हम्म। और दिखे बहुत नहीं? ही, बहुत ही मतलब कि कार्नोट इंजन से नहीं अच्छी। देते होगे, पक्की बात है। कहीं से भी दे सकते हैं यार, कोई रोक रहा है कोई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप रो दोगे। सोच में पड़ जाओगे कि क्या है ये। इतने टफ टफ क्वेश्चन होते हैं काफी। बहुत ही, बहुत कलाकारी हो रही होती है ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक की और उसकी। तो फिर ये ठीक है। थर्मोडायनामिक्स। सर हम, अब कोई और टॉपिक बचा तो नहीं है? नहीं, से एक मैं देख रहा ठीक। हूँ कि एक क्वेश्चन मिल जाए यार कोई। अरे, क्या ही क्वेश्चन मिलेगा, जी में इसका क्वेश्चन इतना इजी है। वो मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वो गेट का मिल गया, गेट? एमटेक के व्हाट? एग्जाम का। व्हाट? गेट में आया हुआ है। नहीं चाहिए। गेट यहाँ का क्यों लैंग्वेज, आएगा? अरे कॉन्सेप्ट तो वही है। अरे, गेट में 4 साल की इंजीनियरिंग का आता है, और इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स का यही चैप्टर होता है। अच्छा। ऑब्वियसली थोड़ा हाई लेवल का होता है थोड़ा सा, लेकिन ये शुरू शुरू में तो सेम ही डिट्टो चलता रहता है। एडियाबैटिक होता तो वही है, फर्स्ट ईयर इंजन। में? नहीं, आगे होता है। अच्छा, आपने पढ़ी है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी क्या? हम्म। है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में सारे पढ़ाते हैं। कंप्यूटर साइंस एक सेमेस्टर में होगी, एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, अच्छा। ऊपर से एक से निकल बताओ, जो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों अलग चीज है? यस। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स तो सारी सेमीकंडक्टर वाली है ना, सीपीयू चिप वगैरह। ओ। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो पावर सप्लाई है, जो बड़े बड़े टावर खंबे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और फिर ऐश करो। हम्म। गेट एग्जाम। गेट। दरवाजा। ग्रेटिट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड नहीं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। यस। ये बढ़िया था कि गेट में मिल गया क्वेश्चन। नो डाउट ये गेट का क्वेश्चन है, तो ज्यादा ही हार्ड सा लग रहा है मुझे यार। डेफिनेशन है।
सिर्फ रिजर्वायर रिजेक्ट्स जो है अलग अलग रिजेक्ट्स टेम्परेचर्स पे है। 1000 किलो जूल, मतलब हाँ ये टेस्ट Q2 और Q1? Q1 ना? यार रिजर्वायर है यार, रिजर्वर। नीचे वाली साइड से, तो T2 हुआ ना ये। नहीं तो टी नहीं, ये 2 किलो जूल, ये Q2 है ना ये? हाँ, इट रिसीव सो मच हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, यस Q2 है। ठीक है बस। ये देखो ना, रुक जाओ। ये कैसा क्वेश्चन है? इसे बड़ा मत करो। इट्स अ हीट इंजन यार, इट्स नॉट इवन अ, इट्स नॉट अ कार्नेट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। ये तो हीट इंजन हाँ, का क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? वही मैं सोच में पड़ गया यार, ये क्या है, बोल क्या रहा है ये? व्हाट द, ये तो हीट इंजन वाली चीज लगा देते हैं ना। ये तो चलो कर ही लिया हमने। कार्नेट से कोई खास ही इसकी वो है, होता ही नहीं क्वेश्चन। कार्नेट पे भी तो इसको देने चाहिए थे क्वेश्चन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। कार्नेट इंजन ही तो है ये। नहीं, हाँ, मतलब रेफ्रिजरेटर मेरा मतलब। ये रेफ्रिजरेटर लग नहीं रहा मेरे को, ये हीट नहीं इंजन ही तो। रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। हाँ नहीं है दिस तो वो कार्नेट इंजन वाले लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर। नॉर्मल वाला लग, ईटा वाला है ये। हाँ। बेकार क्वेश्चन है, एफिशिएंसी बेकार ढूंढ रहा नहीं है है ये, स्कोरिंग है। 1। 1/5 ईटा 1/5 आ गया। W/Q, W/Q1 ना? यस, हम्म, क्वेश्चन तो हम भी बतेरे बना सकते थे, जेई के ऊपर क्या है। 1000 जूल इज Q1 इज 1000 जूल। 200 जूल। सही क्वेश्चन नहीं, गड़बड़ से लग रहा ये तो इंजन का क्वेश्चन था, इसमें करना ही कुछ नहीं है। है। नहीं सर, कुछ और क्वेश्चन लग रहा है इसके अंदर। रिजर्वायर है, लीटर Q1 दिया हुआ है। हम्म।
और क्या गड़बड़ है इसके अंदर? वर्क डन 200 जूल्स आ रहा है मेरा। सर ये ये तो दो देखो ना, जगह से हीट मिलती है इसको। इट रिजेक्ट्स it rejects 1 kJ of heat to a reservoir at 400 Kelvin। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसको दो रिजर्वॉयर से हीट मिल रही है। मेरे को ये नेट एंट्रोपी वाला लग रहा है। एंट्रोपी तो नाम ही नहीं लिखा कहीं पे। इट इज एक्चुअली गेटिंग ये हीट एक फ्रॉम टू। रिवर्सिबल साइकिल है ना। रिवर्सेबल ही होता है हीट इंजन तो हमेशा यार, साइक्लिक होता है पूरा। और रिवर्सेबल कर दो तो उल्टा मतलब, इट रिवर्सेबल प्रोसेस। एंट्रोपी से क्या लेना देना है इसका? मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू हीट इंजन, सॉरी, टू रिजर्वॉयर्स कनेक्टेड टू इट। एक बार ये ले रहा है, यहां से रिसीव कर रहा है, और दूसरी से भी रिसीव ही कर रहा है ये 800 केल्विन पे। सो इट इज कनेक्टेड टू टू रिजर्वॉयर्स एंड वन सिंक। मुझे सर मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। यू शुड आई थिंक ऐड द वर्क इंडिविजुअली। हाँ, क्या है? हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं भी। दो से जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, कनेक्टेड टू टू, लिखा तो है रिवर्सिबल हीट इंजन एंड अ रिजर्वॉयर ऑफ सो एंड सो। इट इज गेटिंग फ्रॉम टू साइड्स। टू रिजर्वर्स। हाँ लिखा तो है, दो रिजर्वॉयर हैं, एक 800 केल्विन का, एक 1000 केल्विन का है। क्वेश्चन की फ्लेवर थोड़ी सी अलग है, दो रिजर्वॉयर वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट। अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस दो दो दे दिए ना, और तो कुछ करा नहीं। दो दे दिए। दैट, वो पढ़ लेना चाहिए था कि दो है भाई इसके अंदर। अच्छा, यू आर सेइंग एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो। हम्म। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मतलब अगर दो जगह से हीट आ रही है तो Q1 प्लस Q2 इज द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू Q3। वर्क डन आ गया। अच्छा। अच्छा, नहीं, इसने टोटल एंट्रोपी को जीरो डाला है पहले Q2 निकालने के लिए। हाँ, Q1 अपॉन ये ज्यादा बेटर है वैसे। इससे हमारा ये, वो निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, गॉट इट, अंडरस्टूड व्हाट यू सेइंग। हम्म, तभी ये गेट का क्वेश्चन है। ये जी थोड़ा का हाई जी। हाई हाई लेवल है थोड़ा सा। इसमें दे आर नॉट आस्किंग यू थर्मोडायनेमिक्स टू। में पढ़ाई जाती है एंट्रोपी। और नहीं पढ़ाई जाती, स्कूल में क्यों? पूछ लेना। नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो मैं किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले से ही पूछता हूँ। सेकंड, नहीं नहीं नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, जेई की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट से। तुम्हारा क्या अच्छा। मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से? नहीं मतलब ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जब यहाँ तक पहुंचता है तो बस जब तो केमिस्ट्री में चला जाता है, जब एंट्रोपी में जाएगा तो अच्छा। नहीं पढ़ना वो। लीव इट देयर। केमिस्ट्री में छोड़ दो उसको। है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही, लेकिन अप्रोच जो है फिर ऑर्डर डिसऑर्डर वाली हो जाती है। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, आई थिंक वी शुड लीव इट नाउ। थिंक हो गया, जितना करना था काफी सारा कर ही लिया है। और वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ kinetic theory किनेटिक्स। of gas. So I'm not available today in the evening. I'm going to watch a play. राम आने वाले हैं कमानी ऑडिटोरियम। अच्छा अच्छा। सुना है? नहीं सुना नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ बड़ा से सही पास प्ले है। पड़ता होगा ना। हाँ, हम्म। राम आने वाले हैं। अच्छा।
Are you क्यूट interested in plays? a lot, अच्छा, a lot, not सजेस्ट interested a lot. है? तो जैसे वो थोड़ा सा वहां पे जो है ना, भी क्या कहते हैं, राम मंदिर में, हम्म वो अगर थोड़ी भीड़ कम होगी ना कुछ टाइम बाद, तो मैं जाऊंगा फैमिली के साथ। अभी जाएंगे लेकिन अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, जब तक वो उसको हाँ, वो स्ट्रीमलाइन नहीं भीड़ कर जब देते ना। सेटल नहीं होती वहां पर तब। हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब 5 लाख 10 लाख लोग रोज आ रहे हैं, वो जगह इतनी अकोमोडेट कर नहीं काफी पा रही। बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है वो। यस, कह रहे हैं साल में 5 करोड़ लोग आएंगे तो तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? फिर डेली 5 लाख हैं तो हाँ, बहुत पता ज्यादा नहीं है ये। कितने हो जाएंगे, 150 करोड़ तो हो जाएगा फिर। चलो जी, बाय देन। वी विल स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय।